Okay, this system of classification, we can say that this is the artificial system of classification. Artificial system of classification. In this, we can say that यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही कि एरिस्टोटल का, पिनी एंड एल्डर या वी कैन से लीनियस, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल और नेचुरल का यहाँ क्या मतलब है. आर्टिफिशियल का मतलब है सिर्फ कुछ एक दो चीज़ों को आधार लिया है, रेस्ट ऑफ उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में एनालाइज नहीं किया. So that system is artificial system of classification. As I have written here, this system of classification use only one or two morphological character. Morphological, that mean only the physical appearance, not that much in the detail. So morphological characters के बेसिस पे कुछ एक कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी गई ऑर्गेनिज्म की. लाइक इफ वी टेक द फर्स्ट वन, एरिस्टोटल, ही डिवाइडेड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग रेड ब्लड और नॉट. इनेमा एंड anema, they are the term used for having red blood or without red blood. He also classified on the basis of their habitat. That means few are aquatic, they are lived in a plant, few are lived on land, so they are terrestrial. Next is aerial. So if we take example, aquatic fishes, whale, terrestrial like cattle, tiger, dog, all these that animals are terrestrial. If we talk about aerial, that means those can flight, so they are the birds. ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने हैबिटेट बेसिस पे भी इसको डिस्टिंग्विश कर दिया. पिनी एंड एल्डर, ही वाज द ऑल्सो गिविंग द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट मीन ऑन द एरिस्टोटल बिहाफ उन्होंने यही सेम चीज़ों को यहाँ पे बताया. लीनियस, जो कि हमने पढ़ा भी था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक, तो लीनियस ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया था. सो दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो अंडर प्लेस द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ classification. What I have written here 24 classes because Linnaeus also distinguish on the morphological character that broad groups ना देकर उन्होंने छोटे छोटे classes में इसको जो है डिवाइड कर दिया. तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, और रेस्ट ऑफ ना ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात की गई, ना अनाटमिकल की बात की गई, ना ही रेस्ट ऑफ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे रखा. तो इस तरीके से बहुत कम कैरेक्टर्स को यूज़ किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो देयर वॉज नीड टू नो कि भाई अगर हम और अच्छे से इसको क्लासीफाइड करें तो हमारे लिए स्टडी करना बहुत आसान रहेगा. तो इस बिहाफ पे नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, दैट वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सिस्टम. So next is natural system of classification. This system was given by Bantham and Hooker. The new name I've heard here, Bantham and Hooker. So Bantham and Hooker, that is Bantham and Hooker. Okay, so he included what? The morphological characters. In artificial system we have studied that only morphological characters are included, but in this system of classification he include not only morphological characteristic, that mean physical appearance, he also included anatomical, that mean internal characters also, cytological, that mean we are talking about cell जो है वो किस तरीके से composed है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजी, दैट मीन उसकी फंक्शनिंग, लाइक वी आर टेकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, डाइजेशन किस तरीके से होता है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी. ठीक, रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, all these are also included in this. Biochemistry, we are talking about the composition of cell overall, so that is the biochemistry, so included this is also. So in a single line we can say both external and internal characters दोनों को analyze करके उन्होंने ये system of classification दिया. So Bantham and Hooker जो है उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहाँ पे जो है पूरा information दिया, that is in his book Genera Plantarum. Okay, so this system not only brings out natural relationship but also studies the evolutionary tendency, or we can say
जेनी, यानी उन्होंने सिर्फ नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया जो एट प्रेजेंट हो, उन्होंने कहा इवोल्यूशनरी, कौन किससे इवॉल्व हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो ना इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाए. सो ओवरऑल वी कैन से आर्टिफिशियल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं. लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहा, ठीक, लेकिन वी कैन से नेचुरल सिस्टम जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, इसीलिए ये काफ़ी हद तक ज़्यादा बेनिफिशियल है. उसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट नेचुरल सिस्टम में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया. और आर्टिफिशियल सिस्टम में हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में उतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती जितना हमें नेचुरल के बेसिस पे मिल सकती है. तो इस तरीके से काफ़ी हद तक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लाइक R.H. विटिकर ने दिया. ये सब जहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, दैट सिस्टम इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट एरिस्टोटल, लाइक लीनियस, ठीक है, उसके अलावा पिनी एंड एल्डर, दे ऑल आर हैव टेकिंग ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल characters. Now the system indicates, we can say phylogenetic relationship, जो मैंने अभी टर्म भी यूज़ किया था phylogeny, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट origin, किस तरीके से originate हुए, evolutionary relationship. उस बिहाफ पे हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे phylogenetic system of classification.